increase the caffeine content by roasting the coffee. हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम एंड ग्लोब। और मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ कॉफ़ी प्लांटेशन टूर पे। और ये वीडियो पार्ट है मेरी कूद की सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा। हेलो, Firstly, welcome to coffee plantation. So in this plantation tour, I'll brief about the local crops for you. Like what are the main crop we are growing. About that, I'll share the basic knowledge with you. So here as a main crop, we are growing coffee only. Along with coffee, some of the side crop we are maintaining, mixed cropping basically, because coffee is a non-competitive plant. So along with coffee, some of the possible fruits, medicinal plants, spice trees, these things we maintain. So in coffee mainly we have two variety, Arabica coffee and Robusta. So now we are in the section of Robusta coffee. See, all these plants are Robusta variety. In India, only this Robusta variety is used more and cultivated more. So in India, mainly two main biggest coffee production areas are there. One is Chikmagaluru, one of the district in Karnataka, and second we are standing biggest production of coffee. Like second biggest production of coffee happens in Coorg. Plant of coffee. So the Robusta coffee plant looks like this. Bonsai variety actually. It will not grow into a bigger tree. Maximum it reaches 7 feet. 7 feet is a maximum height. After 7 feet, branch will occupy more space. So from the far, it looks like completely shrub kind of bushy plant. And these are the fruits of coffee. yeah. So coffee berries it is. So dicot berries. In one fruit, we can expect 2 granule bean inside. So this is actually a harvesting season. December to February will be the perfect time for harvesting. Good fruits up to 120 to 1 year. You'll get in Karnataka Kerala border. It's called bird's eye chili. Very small and very spicy chili. Now bird's eye chili, it won't cause us acidity for you. And one of the best medicine for fat reduction and cholesterol control. हम लोग जा रहे हैं प्लांटेशन टूर के लिए। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं उन्होंने। होपिंग टू सी अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। हैव अ लुक। ये है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉफ़ी स्टेट। फर्स्ट है चिकमंगलुरु में, वो भी कर्नाटका में है, एंड दिस सेकंड। तेज पत्ता Local nursery, you'll get all the saplings. Even the seeds are अपन ले चलेंगे नर्सरी। हाँ हाँ चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। Don't pluck anything. Forgot. Because it requires some more Black water cardamom. content. So soil should be more hydrated to grow these kind of cardamoms and all. So ये हो चुके हैं राइट। ये है कॉफ़ी बीन्स, complete बिकॉज अभी चल रहा है हार्वेस्टिंग सीजन। तो इस तरह के बीन्स हो जाते हैं हार्वेस्ट, तब इनका कलर ऐसे चेंज होता है। एंड अब ये लोग इसको प्लग करके फिर इसको ड्राई करके एंड देन इसको प्रोसेस करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। tree, the creeper is climbing on a tree. And that creeper having a green bunches. Those are all pepper. Oh, Black pepper it is. oh, black pepper. Main variety is Calendulum indica. So in entire Asia, you'll get sandalwood in only south part of India, especially in Western Ghats. And it will become a big tree, madam. will become a- So after 18 years, they're gonna cut the tree. And also for making cosmetic item also it will be useful. And it will be so aromatic. For making perfumes which are also people are using. हम लोग खड़े व्यू पॉइंट पर, मेरे को बहुत डर लग रहा है। फोटो ले लो, इससे अच्छा था। You get multiple branches. The branch density will little low and it will be more flexible. And also it can also bear more fruits. Comparing to Robusta, Robusta occupy more space. But with a small space also we'll get more fruit from Arabica. Spice. After the quality segregation, it goes up to 8,000 per kg also for Arabica. हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते तक आ चुके हैं कॉफ़ी प्लांटेशन देखते हुए। एंड यहाँ पर इनके पास बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स भी हैं, जैसे सैंडलवुड हो गया, पेपर हो गया, जो उन्होंने हमें दिखाया कि और वो किस तरह से हार्वेस्ट होता है। और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ। और भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। एक प्रॉपर ग्रुप है 10-11 लोगों का, और गाइड हमें पूरे रास्ते पर बताते हुए आ रहे हैं कि कैसे किस तरह से कॉफ़ी हार्वेस्ट होती है।
काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी तक। लेट्स सी आगे कैसा रहता है। अभी हमको ये अंदर लेके जाएंगे प्लांटेशन टूर के लिए। वहाँ पर कॉफ़ी टेस्टिंग सेशन भी होगा। सो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमें जो मार्केट में कॉफ़ी मिलती है मोस्टली उसमें चिकोरी होती है, जो कि एक सब्स्टिट्यूट होता है कॉफ़ी का, एंड उसमें कैफीन नहीं होती है। But और यहाँ पे हो रहे हैं हार्वेस्टेड कॉफ़ी बीन्स ड्राई। इस मेथड को सन ड्राइंग मेथड बोलते हैं। कॉफ़ी बीन्स को ड्राई करने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं, बट ये लोग सन ड्राई मेथड को ही ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। after that, और अब हम ट्राई करने जा रहे हैं चिकोरी फ्री कॉफ़ी, जो कि यहाँ पर ही हार्वेस्ट हुई है। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कॉफ़ी अपने कॉफ़ी प्लांटेशन। ओह ड्रेस में गिरी, कॉफी नहीं, पानी गिरा पानी गिरा। हाँ नीचे गिरी नीचे ऊपर ठीक है ठीक दिस इज अ प्योर कॉफी विदाउट एनी चिकरी। है। लेट्स सी हाउ इट इज़। He is telling that light sugar. शुगर इज़ फाइन। Sugar is fine. अगर ये light sugar है तो अलग से करके आते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, डिफरेंट फ्लेवर है एक्चुअली। so these are the two coffee processing machine we have. This is coffee roaster. This is a grinding machine. After harvesting, what we are doing, we're gonna sun dry the coffee fruit for 15 to 20 days to make it demoisture. So you can see outside, they are sun drying the coffee. So after sun drying, they're gonna take the outer part out, like they're gonna peel it off. After peeling, we'll get a coffee bean like this. This is in Arabica, two type of plants will be there: monocot and dicot. Monocot means like single beans only. Dicot plant means it having a two, like robusta only. Coffee doesn't have any good aroma of coffee and good taste because of the low caffeine. So we can increase the caffeine content by roasting. Roasted coffee will give you the more aroma. You can see unroasted coffee you don't get any good aroma and good taste. Green coffee. Green coffee bean it is. By crushing these beans only, we can make a green coffee powder which will be used for medicine. So in early morning empty stomach we can drink green coffee. So this is a small adjustment to control the speed of the turbine inside. That will be keep running by the time of roasting. This is basically a cooling chamber. It cool downs the coffee bean heat and then we can shift it to grinder, because if you're continuously roasting the coffee bean for 1 hour, coffee bean will be very heat in nature. We can't directly pour into a grinder. Grinder will get burnt out. That is the reason we are cooling down the bean heat first, then we are gonna shift it to grinder. See, this is a roasted coffee bean. Directly we pour into a grinding machine. This is a simple grinding machine. A floor machine you know it, similar kind. This machine having a tight adjustment. With tight adjustment, we get fine powder. Final product. Yes. और अब हम देखने जा रहे हैं कॉफ़ी का फाइनल प्रोडक्ट, जो कि कॉफ़ी पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है। वो इस मशीन के थ्रू बनाया जाता है। ओह सॉरी। You can see this is the strongest coffee. This is the Robusta with 10% chicory. ये लोग क्लेम करते हैं कि इनकी कॉफ़ी में सिर्फ 10% चिकोरी होती है, जो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है लॉन्ग रन में। और अगर आपको पता करना है कि आपके घर पे रखी हुई कॉफ़ी में चिकोरी है या नहीं, तो उसे आप थोड़ी देर के लिए एयर पे ओपन छोड़ दीजिए। अगर वो बहुत इजीली ड्राई होकर के ब्लैक हो जाती है, तो इसका मतलब आपकी कॉफ़ी में कॉफ़ी कम और चिकोरी ज़्यादा है। Textured cappuccino, mocha latte. You can taste the powder also. It will be easily get melted in your mouth. ये कॉफ़ी पाउडर बड़ी बड़ी कॉफ़ी चेन्स में यूज़ होता है अलग अलग फ्लेवर की कॉफ़ी बनाने के लिए। इसमें चिकोरी बहुत कम होती है, इसी वजह से कॉफ़ी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। Monopod. Triple A. And some फॉर इट्स अ वेरी सक्सेसफुल प्लांटेशन टूर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली हमें कॉफ़ी के बारे में, और हम बहुत सारी कॉफ़ी खरीद भी रहे हैं।
एंड घर जाके टेस्ट करके आई विल लेट यू नो दैट हाउ इट एक्चुअली टेस्ट। तो कॉफ़ी का पूरा प्रोसीजर हमने देखा, पेड़ से लेकर के फिर वो कैसे प्रोसेस होती है, एंड देन हमने टेस्ट भी किए इनके प्लांटेशन में उगी हुई कॉफ़ी को हमने टेस्ट भी किया। और हमने कुछ फ्लेवर्स की कॉफ़ी ली है। एक कॉफ़ी हमने ली है ग्रीन कॉफ़ी, जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है एंड इट्स वेरी गुड फॉर इम्यून। में घर जाके पीने के बाद पता चलेगी वो कैसी है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। दीज आर होममेड वाइन्स, जो कि कूर्ग की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर हर फ्रूट की वाइन अवेलेबल है। ग्रेप से लेकर के, मलबेरी से लेकर के, इवन जैक फ्रूट भी फ्लेवर्स हैं। एज यू कैन सी, तुलसी वाइन, प्योर नेचुरल चीकू वाइन, कॉफ़ी वाइन, गूसबेरी वाइन। तो यहाँ पर हर फ्लेवर की वाइन अवेलेबल है। और हमने कल ट्राई की थी ग्रेप वाइन विच इज़ नॉन अल्कोहलिक, सो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आयुष, अब किधर जा रहे हो? पीछे तो देखो, हाँ वहाँ से व्यू पॉइंट है। हाँ मेरे को लगा, लेकिन वो क्या कह रहा था, उसको दूध में मिक्स नहीं कर सकते एक्चुअली, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। हाँ ग्रीन वाले तो मेरा मन था, पापा लोग के लिए ना अच्छी रहती है यार वो। ले ली ना? हाँ एक ले ली हमने ग्रीन वाली, एक सिंपल ली है। हम लोग अब उतर रहे हैं व्यू पॉइंट से। वी वर एट द व्यू पॉइंट, जो कि हमारी प्लांटेशन के ऊपर ही था, और यहाँ से पूरा रोड से लेकर के पूरा हिल्स का व्यू आता है। हाय आयुष। हाय। काफ़ी बहादुरी दिखाई आयुष ने यहाँ पर। पूरे ऊपर तक ही, यहाँ तक पूरा चला गया था। ये एक बोट की फॉर्म में है जो ये व्यू पॉइंट है। बस अब हम लोग क्या करें, हम लोग चल रहे हैं वापस बैंगलोर। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप, बहुत 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 मज़ा आया। हमने कॉफ़ी भी परचेज़ की है एंड नाउ वी आर हेडिंग टू बैंगलोर। इट्स ऑलमोस्ट 2:45। और कूर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। इट्स अ हिडन जेम। डेफिनेटली, आई विल कम्प्लीटली अग्री विद यू। हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा अच्छा, और बैंगलोर से इतना पास भी था। हमें 3 साल लग गए यहाँ आने में, बट आई थिंक वर्थ था और बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2:45 हो चुके हैं। हम लोग टारगेट करेंगे हम लोग जल्दी से निकल जाएं, क्योंकि बैंगलोर में होगा बहुत गंदा जैम और हम वहाँ नहीं फंसना चाहते। तो अब चलते हैं वापस। मुस्कुराइए, आप बैंगलोर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर टोल नाके पे भी जाम लग सकता है, चाहे 11 लेन्स भी क्यों ना हो।